Hello dear learners, welcome to my YouTube channel Learn at Home. Today we shall solve sample question paper of session ending exam subject Mathematics class 4th. In your question paper there are 4 competencies. Here first one is knowledge, understanding, ability in computation and problem solving ability. In each competency you will get 10 marks. So solve them carefully. So let's begin our question paper. Here is first competency is knowledge, in which some questions are given in front of you, which is of 10 marks. First question is for 1 marks. So let's begin. Write a fraction with numerator 12 and denominator 15. In this question, numerator and denominator both are given. So here you have to write 12 and here you have to write 15, because as we know, always above value represented as numerator and below value is always represented as denominator. Here is the next question. Total length of the boundary of the field is known as parameter. Next, short answer type questions. 3 by 4th part. You have to color it. थ्री बाई फोर्थ पार्ट का मतलब होता है आपको ये पूरा पार्ट है, इसके टोटल 4 पार्ट किए गए हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे. दिस इज 1, 2, 3 and 4. You have to take only 3 part, so you have to color it in 3 part. So like this way you will color 3 parts. Next is 2 by 7. Total 7 parts of this figure is given here. You have to color only 2 part, 1 and here second one. Next question is Z 26, Y 27, X 28, W 29. अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनका रिवर्स ऑर्डर चल रहा है. X के बाद Y, देन Z के बाद Y के बाद X एंड X के बाद W. तो अब W के बाद आप यहाँ पे क्या भरेंगे? V. एंड B से पहले क्या आएगा? U, बिकॉज U, V, W, X, Y, Z. दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट्स. हेयर 26, then 27, then 28 and then 29. So next number is 30, and in this sequence you have to add 1 in 30, so it will 31. Like this way you will solve this series and you will get 2 marks in both question. Put an arrow in the circle given under the pan. Which side will be heavier side will be go down? So in this question, first is 250 and 500. So 250 gram and 500 gram.
it will become 750 gram. And here 1 kg means 1000 gram, and 750, it will become 1750 gram. So this pen is heavier than this pen. Next question is here 850 gram and 200 and 300 and 650. In left side pen 850 and 200, it will become 1050, मतलब 1050 gram. And in this side 639, 950 gram. So left pen is heavier than right pen. So this one is the correct answer. Here understanding part is started. So first question is continue the pattern. In first part you have to continue the pattern. Here first part is colored, here second part is colored, here third part, and you have to draw a circle and divide it into 4 equal parts. After then you have to color this part, because according to the sequence here first, then second, it is third, and this one is fourth. Next, half of 22. Then if you will divide it by 2, you will get 11. Next, write the fraction for the shaded part. So first of all you have to find out what is the shaded part of this question. As you can see in the picture, total how many rows are there? In this figure, total 1, 2, 3, 4 and 5. Here 1, 2, 3, 4. 4 rows are given and 5 columns. 4 row and 5 column. So here total how many squares are there? 5 fours are 20 squares. 20 squares are there. So you have to write 28. 8 upon 20. And here 1, 2, 3, 4. टोटल 4 पार्ट्स हैं जिसमें से 2 पार्ट कलर्ड है. तो यहाँ पे 4 लिख देंगे आप और यहाँ 2. सो आंसर इज 8/20 एंड 2/4. नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, एक पैटर्न दिया गया है, उसको आपको फिल करना है. फिल करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि ये पैटर्न फॉलो क्या कर रहा है. यहाँ पे 1 + 2, 2, 3 एंड 3, 4. यहाँ पे 3 और 4 को ऐड किया गया है तो 7 आ रहा है. तो आपको इन दोनों को भी ऐड कर देना है. तो 2 + 3 हो जाएगा 5. यहाँ 1 + 2 हो जाएगा 3. नेक्स्ट अब यहाँ पे 3 + 5 हो जाना है आपका 8 और 5 + 7 हो जाएगा आपका कितना 7, 3, 10, 10 + 2, 12. यहाँ 8 + 12 आपका 20. इस तरह से ये पैटर्न भी आपका कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है. मधु वॉन्ट्स टू पुट लेस अराउंड द टेबल क्लॉथ. सो दिस इज अ रेक्टेंगुलर फिगर. Here width of the given figure is 1 meter 40 centimeter and length is 3 meter 60 centimeter. Opposite sides are equal, so 1 meter 40 centimeter. This one is also 1 meter 40 centimeter. Here 3 meter 60 centimeter, so this one is also 3 meter 60 centimeter. Now you have to sum up all these sides of the given figure. So sum up of
all these figures is here it is 200 centimeter and it is 8 meter. Now 200 centimeter will become 2 meter because 1 meter is equal to 100 centimeter. So 200 will become 2 meter, then it will become 8 meter plus 2 meter is equal to 10 meter. Total 10 meter less is needed. How many meter of less does she needed for one tablecloth? So answer of this is 10 meter. Next is how many meter of less does she needed for 3 tablecloth? Now here for 3 tablecloth, if one tablecloth she needed 10 meter, then for 3 tablecloth meter into 3, 30 meter is the right answer. So next, ability to compute. Here is the first question. What will be the boundary of a square that's each side is 6 centimeter? Here is a square whose side is 6 centimeter. So 6 centimeter, 6 centimeter and each one is 6 centimeter. So sum up of all these side 24 centimeter. Now here is a table 1 4 means यहाँ 1 काऊ है उसके 4 legs है, then here 2 काऊ है तो 8, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. आप देखेंगे 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 8 आ जाएगा. अब यहाँ पर 3 काउज होंगी तभी तो 12 होगा बिकॉज 4 3 ज़ा 12, यहाँ 4 4 ज़ा 16. इस तरह से आप ये टेबल भी फिल कर लेंगे बाय मल्टीप्लिकेशन. और तो हमारा नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. यहाँ ग्राम है, यहाँ किलोग्राम है. आपको सिंपल ऐड करना है. यहाँ पर ऐड करने के लिए आपको क्या प्रोसेस करनी है, सिंपल जैसे आप करते रहे हैं वैसे ही प्रोसेस फॉलो करेंगे. यहाँ पर भी आपको 320 और 150 ग्राम, यहाँ 0 5 6 7 3 और 1 4, टोटल 470 ग्राम एंड हियर 12 and 8 19 kilogram. In this question you have to multiply 345 by 24. So here first of all you have to multiply 4, 5 4s are 20, 2 carry, 4 4s are 16, 18, 1 carry, 4 3 are 12, 1 13. Now here 5 2s are 10, 1 carry, 4 2s are 8, 1 9, 3 2s are 6, 0 8 9 or 1 10, 12, 1 carry, 6 1 7 or 1 8. Total answer is 8280. Here next is look at the bar graph and answer the given question. In this bar graph here is a record of 4 cities: केरला, दिल्ली, कश्मीर एंड उत्तर प्रदेश. इस बार ग्राफ में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर टेम्परेचर के ग्राफ को दिखाया गया है, केरला का, दिल्ली का, कश्मीर का, उत्तर प्रदेश का. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ केरला एंड दिल्ली. सो इन दिस बार ग्राफ एज यू कैन सी दैट केरला इज इन 30. So first of all you have to write here 30 and here Delhi 40 and here Kashmir it is 10 and Uttar Pradesh is at 35. So first question is what is the difference in temperature of Kerala and Delhi. So Delhi 40 and Kerala is 30. Now you have to subtract
30 from 40, then your answer will be 10 degree Celsius. Next question is temperature of Delhi is how much more than Kashmir? So दिल्ली का टेम्परेचर कश्मीर से कितना ज़्यादा है? तो आप लोग देख पा रहे हैं दिल्ली का है 40. हियर दिल्ली टेम्परेचर इज़ 40 डिग्री सेल्सियस एंड कश्मीर 10 डिग्री सेल्सियस. सो यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है. हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. रजिया वॉन्ट्स चेंज फॉर 500 रुपीज़. हाउ मेनी नोट्स विल सी गेट इफ़ सी वॉन्ट इन रिटर्न ऑल 100 रुपीज़ नोट. यहाँ पर आपको 500 रुपये के बदले में 100 रुपये के नोट चाहिए. तो आपको पहले तो क्या करना होगा कि 500 को 100 रुपीज़ के नोट में डिवाइड करना है. इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के लिए 100 से डिवाइड कर सकते हैं 500 का. नॉर्मल जब आप 500 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा. टोटल 500. योर आंसर इज़ 5. नेक्स्ट इज ऑल 50 रुपीज़ नोट. अब 500 रुपये के नोट को 50 रुपीज़ के नोट में आपको तोड़ना है. तो आप क्या करेंगे, 50 से डिवाइड करेंगे 500 को. तो जब आप 500 रुपीज़ को 50 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 1 टाइम और 100. तो यहाँ पर टोटल 10 नोट आपको मिलेंगे. नेक्स्ट इज 20 रुपीज़ के नोट चाहिए आपको 500 के. तो जब आपको 20 रुपीज़ के चाहिए तो 20 से डिवाइड करेंगे 500 को. तो आपका जब डिवाइड होगा उसका तो 20 का टेबल 2 टाइम्स आपको पढ़ना होगा. तो 40 देन 10 रिमेनिंग 0 आप उतारेंगे. यहाँ पर 20 से 5 टाइम्स होगा, देन इट विल बिकम 100 एंड योर आंसर इज 25 नोट्स आपको नीडेड हैं 20 रुपीज़ के. यहाँ पर 10 नोट्स और यहाँ पे 5 नोट. यहाँ पर 5 रुपीज़ के कितने नोट चाहिए, सिंपल सी चीज़ है. जब आपको 5 से आपका 100 का डिवाइड करेंगे, 500 का, तो यहाँ पे 100 टाइम्स जाएगा. जब 100 टाइम्स जाएगा तो आपको कितने रुपए की ज़रूरत है, यहाँ पर 100 नोट चाहिए. 500 रुपीज़ हो पाएंगे. इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेजिटेबल सेलर हैड 25 kg of onions. He sold 20 kg onions. How much onions are left with him? 25 किलो अनियन उसके पास हैं. तो सिंपल सी चीज़ है, 25 kg अनियंस हैं. 20 kg उसने सेल कर लिए, 20 kg उसने सेल कर लिए. अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हाउ मच, मतलब कितना लेफ्ट रह गया उसके पास अभी कितना बचा है. तो आप जब माइनस करेंगे तो रिमेनिंग आपके पास आ जाएंगे 5 kg. सो योर आंसर इज 5 kg. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 2 सेंटीमीटर. सो हेयर 2 सेंटीमीटर की आपकी साइड्स हैं, यहाँ 2 सेंटीमीटर. अब नाउ यू हैव टू पैरामीटर फाइंड आउट करना है. पैरामीटर मतलब चारों बाउंड्रीज का सम. तो आप या तो 2 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करा दीजिए 8 सेंटीमीटर, या ऐड, बिकॉज जो हमारा ऐड होता है रिपीटेड ऐड हमारा मल्टीप्लिकेशन कहलाता है. तो यहाँ पर भी आपका 8 सेंटीमीटर ही आंसर आएगा. गणेश हैज़ अ बॉक्स इन विच ही हैज़ 12 लड्डूज. हाउ मैनी बॉक्सेस डज ही नीडेड फॉर पैकिंग 60 लड्डूज. अब यहाँ पर 1 बॉक्स कैरी 12 लड्डूज. हाउ मच सी चीज़ है, टोटल लड्डूज की बात अगर आप करें, टोटल लड्डूज हैं 60. तो आपको क्या करना होगा, 12 डिवाइडेड बाई 60. सो हाउ मैनी बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड, 5 बॉक्सेस. जब भी आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी गिवन हो, यहाँ पर 60 लड्डूज आपके पास ऑलरेडी हैं,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, बॉक्सेस में उन्हें डिवाइड करना है, तभी आपको पता चल पाएगा कि एक बॉक्स में कितने लड्डू आप फिल कर सकते हैं। इस तरह से आप डिवाइड करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। हियर 5 बॉक्सेस आर नीडेड। नेक्स्ट इज इफ साइड ऑफ स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर देन फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ जो है आपकी 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ जो है आपकी वो है 2 सेंटीमीटर। पैरामीटर निकालने के लिए आपको सबका सम करना पड़ता है, तो आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 4 + 4 + 4, आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर आंसर। देयर आर 100 students in a school. Look at this chapati chart, then answer the following question. Here is a chapati chart given in which 3 parts are given: gardening club, medicine club, games club. So number of student in gardening club. First of all, there are total how many children? 100 children are there. Here gardening club, total half part is here of gardening club. So we have to divide 100 by 2. Then total 50 students are there. यहाँ पर आपके कितने स्टूडेंट्स आ जाएंगे, गार्डनिंग क्लब में हो जाएंगे आपके 50 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट इज, अब हाफ का हाफ है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये 1/4 पार्ट है, 1/4 पार्ट, बिकॉज ये आपका हाफ पार्ट है और ये हाफ का भी हाफ है, ये पूरे हाफ का भी हाफ है, सॉरी हाफ का भी हाफ पार्ट। तो ये टोटल मिला के कितना हो गया, 1/4 पार्ट। तो इस मेडिसिन क्लब वाले पार्ट में अगर आप 50 का हाफ करेंगे तो यहाँ पर भी कितने 25 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, और इस वाले पार्ट में भी आपके 25 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन गार्डनिंग क्लब आर, सो गार्डनिंग क्लब में आपके कितने होंगे 50 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन गेम्स क्लब आर, सो गेम्स क्लब में आपके हो जाएंगे 25 स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मेडिसिन क्लब 25, total number of students in medicine club and games club, so you have to add 25 plus 25, it will become 50 students. Thank you and have a nice day.